my channel. So today we are going to discuss chapter number 8 of number theory and trigonometry, that is circular functions of a complex variable. तो circular function के अंदर हमारे पास first function आता है exponential function. So exponential function is denoted by e raised to power x, जिसकी expansion होती है मेरे पास 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial up to so on. जो मेरे पास यहाँ पे e है, it is the base of the natural logarithm. जो e है उसको हम बोलते हैं base of natural logarithm, और जिसके which stand for उसकी वैल्यू मेरे पास ये होती है. और अगर x से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे x, यहाँ पे x स्क्वायर, वो बन जाएगा हमारे पास. अगर z मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y की फॉर्म में, which is a complex number, तो मेरे पास e raised to power z का फॉर्मूला हो जाएगा 1 plus z square by 2 factorial plus z cube by 3 factorial up to so on. Now we have to prove that e raised to power x plus iota y is equal to e raised to power x cos y plus iota sin y. हम ले लेते हैं कि z is equal to x plus iota y. ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा एक्सपेंशन. ये जो एक्सपेंशन है इसके अंदर मैं पुट करूं, अगर मैं यहाँ पे x को 0 पुट कर दूं तो मेरे को मिल जाएगा z is equal to iota y. अब पुट करते e is equal to iota y is equal to 1 plus iota y whole square by 2 factorial plus iota y whole cube by 3 factorial. नेक्स्ट टर्म मिल लेते हैं iota y raised to power 4 by 4 factorial up to so. So ये बाहर जाएगा e raised to power iota y is equal to 1 plus iota y, या जाएगा iota square is -1, so minus y square by 2 factorial plus iota cube मेरे पास आ जाएगा iota square into iota square तो -1 तो आ जाएगा minus iota, that is minus iota y cube by 3 factorial. iota की पावर 4 आ जाएगा +1, आ जाएगा y raised to power 4 by 4 factorial, which is further equal to e raised to power iota y 1 minus y square by 2 factorial plus y raised to power 4 by 4 factorial. यहाँ से iota वाली टर्म को लिख लेते हैं, यह आ जाएगा y minus y cube by 3 factorial up to so on. ये वाली वैल्यू होती है मेरे पास cos y प्लस iota तो है, ये आ जाएगा sin y. ठीक है, तो e raised to power iota y की मेरे पास वैल्यू आ चुकी है. e raised to power iota y की वैल्यू आने के बाद मैं दोनों साइड e raised to power x से मल्टीप्लाई कर देती हूं, तो आ जाएगा e raised to power x into e raised to power iota y is equal to e raised to power x cos y plus iota sin y, which is further equal to e raised to power x plus iota y is equal to e raised to power x cos y plus iota sin y. ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था. अब हम डेफिनेशन देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की. The exponential function e raised to power z of a complex variable, जहाँ पे z मेरे पास x plus iota y है, where x and y are function of a real number. So exponential of z हमारे पास होता है e raised to power x plus cos into cos y plus iota sin y, जो भी हमने प्रूफ किया था. So e raised to power x cos y plus iota sin y. So exponential of z मतलब exponential of x plus iota y, क्योंकि यहाँ पे z आपके पास क्या लिया हमने, x plus iota y. नेक्स्ट वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास इंडेक्स लो, जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन. मैंने लिया e raised to power z1 e raised to power z2, ये इक्वल होता है हमारे पास e raised to power z1 plus z2. प्रूफ करते हैं. हम z को यहाँ पे बेसिकली ले लेते हैं x1 plus iota y1, z1 को ले लिया, z2 को ले लेते हैं x2 plus iota y2. फिर हम यहाँ पे ले लेते हैं e raised to power z1 की वैल्यू क्या आएगी, e raised to power x1 plus iota y1. अभी मैंने बताया था ये किसके इक्वल होता है, e raised to power x1 cos y1 plus iota sin y1. अभी हमने डिस्कस किया था e raised to power z2, ये आ जाएगा e raised to power x2 plus iota y2. अगर आपको ध्यान नहीं रहता तो इसका एक ट्रिक है कि जो रियल पार्ट है उसको एक ही पावर में लिख दो साइड में, और इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट को लिख दो आप cos और sin के साथ. अब हम यहाँ पे बेसिकली कंसीडर करेंगे e raised to power z1 into e raised to power z2, मतलब इन दोनों की प्रोडक्ट e raised to power x1 cos y1 plus iota sin y1, e raised to power x2 cos y2 plus iota sin y2, e raised to power x1 plus x2 कॉमन आ जाएगा e raised to power x1 x2. जब इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो cos हमारे पास ये और cos ये, तो हमने पिछले एक्सरसाइज में पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, फॉर्मूला cos ऑफ एंगल ऐड हो जाता है अगर मल्टीप्लिकेशन में होता है. तो मेरे पास ये आ जाएगा. इसको मैं फर्दर क्या लिख सकती हूँ, e raised to power x1 x2 प्लस में यहाँ पे
रेज़ टू पावर z1 डिवाइड बाय e रेज़ टू पावर z2 का फॉर्मूला होता है e रेज़ टू पावर z1 माइनस z2। नेक्स्ट अगर हमें ये प्रूफ करना है कि e रेज़ टू पावर z इनटू n इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर nz, तो हम इसी फॉर्मूले से करेंगे। अगर मैं यहाँ पे z1 z2 अप टू सो ऑन को मैं यहाँ पे पुट कर दूं बेसिकली z, ठीक है, तो आ जाएगा e रेज़ टू पावर z e रेज़ टू पावर z e रेज़ टू पावर z कितने टाइम्स n टाइम्स, ये आ जाएगा e रेज़ टू पावर z कितने टाइम्स n टाइम्स, तो फर्दर आ जाएगा e रेज़ टू पावर z रेज़ टू पावर n और यहाँ पे आ जाएगा n टाइम्स, तो आ जाएगा nz। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना। सो नेक्स्ट वी हैव कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, मतलब हर 2n पाई वैल्यू पे ये रिपीट करता है अपनी वैल्यूज। तो हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पे लेट कर लो z जो है मेरे पास है x प्लस आयोटा y। सो e रेज़ टू पावर z मतलब e रेज़ टू पावर x प्लस आयोटा y, जिसकी वैल्यू होती है e रेज़ टू पावर x cos y, जो रियल पार्ट है वो एक्सपोनेंशियल में बचा हुआ cos y प्लस आयोटा sin। e रेज़ टू पावर z की वैल्यू होती है, हमें पता है कि cos ऑफ x प्लस 2n पाई मतलब 0, ये किसके इक्वल होएगा मेरे पास cos ऑफ y, यहाँ पे y ले लेते हैं, cos ऑफ y के इक्वल होएगा। अब देखो यहाँ पे हम cos ऑफ y को क्या पुट करते हैं, e रेज़ टू पावर x cos ऑफ y प्लस 2n पाई। सिमिलरली अगर साइन में भी बात करें साइन ऑफ y प्लस 2n पाई, ये भी किसके इक्वल होएगा साइन y के, क्योंकि 2n पाई की वैल्यू 0 होती है, प्लस आयोटा साइन ऑफ y प्लस 2n पाई। तो क्या लिख सकते हैं e रेज़ टू पावर x प्लस y प्लस 2n पाई, इसको लिख सकते हैं e रेज़ टू पावर आयोटा के साथ आएगा ना ये चीज, e रेज़ टू पावर x प्लस आयोटा y प्लस 2n पाई आयोटा। देखिए ये जो चीज मैंने कैसे लिखी, जो यहाँ पे cos में एंगल होता है वही तो मेरे पास इमेजिनरी पार्ट में जाता है, मतलब यहाँ से मैं यहाँ आई तो मैं वापस यहाँ से यहाँ आ सकती हूँ। देखिए यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट था वो मेरे पास एंगल में गया था ना यहाँ पे y, अब एंगल ये तो इमेजिनरी पार्ट ये आएगा, सो e रेज़ टू पावर x माइनस आयोटा y प्लस 2n पाई, ये आ जाएगा e रेज़ टू पावर z प्लस 2n पाई आयोटा। ये हमें करना था प्रूफ कि वो 2n पाई का हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन होता है। सो e रेज़ टू पावर z इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ 2n पाई, ठीक है, आयोटा भी लिख लो यहाँ पे। एग्जांपल 1 है, हमें फाइंड आउट करना है एक्सपोनेंशियल ऑफ 2n पाई आयोटा, मींस e रेज़ टू पावर 2n पाई आयोटा। रियल पार्ट है नहीं तो मतलब e रेज़ टू पावर 0 लिख लो, चाहे यहाँ पे प्लस 0 लिख के e रेज़ टू पावर 0, और जो आयोटा वाला पार्ट है वो हमारे पास एंगल में जाता है, सो cos ऑफ 2n पाई प्लस आयोटा sin ऑफ 2n पाई। अब cos ऑफ 2n पाई मतलब ये ऑलवेज 0 होता है मेरे पास, और मैं बात करूँ cos ऑफ 2n पाई, देखिए n की वैल्यू अगर मैं 0 लूँ तो sin 0 cos 0, sin 0 होता है 0, cos 0 क्या होता है 1। अगर मैं n की वैल्यू 1 लूँ तो आ जाएगा sin 2 पाई cos 2 पाई, इसकी वैल्यू अगेन 0 and 1, हमेशा इसका वैल्यू क्या आएगा 1। या फिर ऐसा समझ लो 2n पाई मतलब ये वाली लाइन जब दोबारा रिपीट होएगा पीरियोडिक फंक्शन तो वापस यहीं पे आएगा अगेन, तो सेम वैल्यू आपको ये वाली मिलेगी, दैट इज 0 and 1। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है एक्सपोनेंशियल ऑफ प्लस माइनस आयोटा पाई बाय 2। रियल पार्ट में तो 0 लिख लो, तो आ जाएगा e रेज़ टू पावर 0 रियल पार्ट 0 cos आयोटा प्लस माइनस आयोटा पाई बाय 2 प्लस आयोटा sin प्लस माइनस पाई बाय 2। यहाँ पे आयोटा नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ एंगल आता है। अब देखो sin cos पाई बाय 2 या माइनस पाई बाय 2 ऑलवेज 0, ये पार्ट तो 0 मिल गया, ठीक है। अब बात करें इस पार्ट की, और ये बाहर है 1 प्लस, अब मैं प्लस माइनस बाहर लेके आ रही हूँ, तो प्लस माइनस आयोटा sin पाई बाय 2 रह गया, sin पाई बाय 2 क्या होता है 1, तो आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा। और यही हमें क्या करना था प्रूफ। नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 2, हमें इसको स्प्लिट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट में। देखिए पहले मैं 5 प्लस के आयोटा का स्क्वायर खोल देती हूँ एक बार, व्हिच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो आ जाएगा 5 5 25 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर, 5 2 10 30 आयोटा, तो आ जाएगा 25 आयोटा स्क्वायर आता है -1, तो आ जाएगा -9 30 आयोटा, 25 माइनस 9 दैट इज 16 प्लस 30 आयोटा। तो को सिंपलीफाई करने के बाद मेरे पास ये आ चुका, मतलब e रेज़ टू पावर मुझे कैलकुलेट करना है 16 प्लस 30 आयोटा। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, e रेज़ टू पावर 16, इसको लिखेंगे हम, जो रियल पार्ट है वो e की पावर में जाता है और इमेजिनरी पार्ट हम लिखते हैं cos के साथ, तो cos ऑफ 30 प्लस आयोटा sin ऑफ 30। तो यहाँ से रियल पार्ट क्या आ जाएगा मेरे पास, रियल पार्ट की मैं बात करूँ तो आ जाएगा e रेज़ टू पावर 16 cos 30, और यहाँ से मेरे पास इमेजिनरी पार्ट
साइन 30। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3, आपको इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी चेंजेस बनाने पड़ेंगे। तो देखिए फर्स्ट ये मेरे पास आ रहा है साइन ऑफ, अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूँ तो आ जाएगा साइन ऑफ c माइनस डी साइन ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला लगा देते हैं साइन a cos b माइनस cos a sin b, ठीक है। e रेस्ट पावर प्लस माइनस अल्फा क्या आ जाएगा मेरे पास, रियल पार्ट तो है नहीं तो 0, e रेस्ट पावर 0 1, तो आ जाएगा cos अल्फा प्लस माइनस आयोटा साइन अल्फा। बेसिकली जो चीज है ना इसको जानते को सिंपलीफाई करें, अगर हम e रेस्ट पावर प्लस माइनस आयोटा अल्फा, इसको मैं लिखूंगी cos ऑफ प्लस माइनस अल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ प्लस माइनस अल्फा। अब cos के अंदर कुछ भी हो वैल्यू क्या मिलती है पॉजिटिव, सो cos ऑफ अल्फा, cos ऑफ माइनस अल्फा इज आल्सो cos अल्फा, तो आ जाएगा cos अल्फा, इसका प्लस माइनस बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा प्लस माइनस साइन ऑफ अल्फा। तो मैंने इसको इस टाइप से लिख दिया इनटू sin थीटा रेज़ टू पावर n। सो ये मेरे पास आ जाएगा sin अल्फा cos थीटा माइनस cos अल्फा sin थीटा, मल्टीप्लाई कर देते हैं cos अल्फा sin थीटा प्लस माइनस आयोटा sin अल्फा sin थीटा रेज़ टू पावर n। तो यहाँ से cos अल्फा से ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे को मिल जाएगा यहाँ से sin अल्फा cos थीटा प्लस माइनस आयोटा sin अल्फा sin थीटा रेज़ टू पावर n। अब मुझे यहाँ पे साइन रेज़ टू पावर n माइनस 1 चाहिए, यहाँ से मेरे पास n कॉमन आ रहा है पर n तो निकालें, तो आ जाएगा साइन ऑफ अल्फा कॉमन आएगा तो बाहर आके साइन ऑफ n अल्फा, अंदर आ जाएगा मेरे पास cos थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा। इतना पार्ट रहने के बाद देखिए हम अब क्या करेंगे, हमें बेसिकली चाहिए इसकी पावर n है, उसको हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, आ जाएगा साइन ऑफ n थीटा बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम, n एंगल में आ जाएगा तो आ जाएगा cos n थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन n थीटा, ठीक है। अब मेरे को साइन ऑफ n माइनस 1 चाहिए, तो मैं इसको क्या कर लेती हूँ, इसको ब्रेक कर लेती हूँ, साइन ऑफ n माइनस 1 अल्फा इनटू साइन ऑफ अल्फा, इस टाइप से मैं ब्रेक कर सकती हूँ ना इसको, और साइन अल्फा को ना मैं इनकी मल्टीप्लिकेशन में ले जाती हूँ, आ जाएगा cos n थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन n थीटा। तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ n माइनस 1 अल्फा, साइन अल्फा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा cos n थीटा साइन अल्फा प्लस माइनस आयोटा साइन n थीटा साइन अल्फा, ठीक है। अब मुझे वहां पे चाहिए साइन अल्फा माइनस n थीटा, मतलब अगर मैं इसको ओपन अप करूं तो आ जाएगा साइन अल्फा, रफ अर्थ में कर सकते हैं आप cos ऑफ n थीटा माइनस cos अल्फा साइन ऑफ n थीटा। तो यहाँ देखिए मेरे पास cos ऑफ n थीटा साइन अल्फा मतलब फर्स्ट टर्म तो है, मुझे ये टर्म चाहिए तो मैं क्या कर देती हूँ यहाँ पे माइनस कर देती हूँ cos अल्फा साइन n थीटा और प्लस भी कर देती हूँ ताकि मेरे इक्वेशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। अब ये वाली जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है ये मेरे पास बन जाएगा साइन ऑफ अल्फा माइनस n थीटा, जो मैंने आपको बताया वहां से, प्लस माइनस आयोटा ये है और ये मेरे पास है, तो यहाँ से इन दोनों टर्म्स में से मैं यहाँ पे अगर मैं कॉमन निकालना चाहूँ तो साइन n थीटा कॉमन आएगा और यहाँ जाएगा cos अल्फा प्लस माइनस आयोटा साइन अल्फा, ठीक है। और इन सब के बाहर है मेरे पास साइन रेज़ टू पावर n माइनस 1 अल्फा, तो ये चीज आ जाएगी मेरे पास दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ n माइनस 1 अल्फा साइन ऑफ अल्फा माइनस n थीटा। अब देखिए जो ये cos अल्फा प्लस माइनस आयोटा साइन अल्फा, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ e रेज़ टू पावर प्लस माइनस आयोटा अल्फा साइन n थीटा। देखिए जैसे मैंने इस चीज को e रेज़ टू पावर प्लस माइनस आयोटा अल्फा को ये लिखा था, अब वापस इसको ये पुट कर सकती हूँ, सो बाय दिस हमारे पास ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। So your exercise number 1 of chapter 8 is completed. In the next video we will discuss exercise 8.2. Till then, thank you.